اکبر اعظم کی، جس نے انصاف سے ہندوستان پر راج کیا، اور ایک شہزادے کی، شہزادہ سلیم کی، جس کے دل نے وہ بغاوت کی جو تخت و تاج ہلا گئی۔ اور یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس کا نام تھا انارکلی، جس کی مسکراہٹ نے سلطنت کی دیواریں لرزا دیں اور جس کی محبت نے تاریخ بدل دی۔ کہا جاتا ہے جب دل محبت میں ڈوب جائے تو تخت چھوٹ جاتا ہے، اور جب بادشاہ دل سے فیصلہ کرے تو تاریخ رو پڑتی ہے۔ آج کی کہانی ایک عشق کی جو تاج سے بڑا تھا، ایک سزا کی جو دیواروں کے پیچھے دی گئی، اور ایک نام کی جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ یہ ہے مغل اعظم، محبت، بادشاہت اور قربانی کی ایزاوال داستان۔ رات کی خاموشی تھی، آسمان پر ستارے اپنی چمک کھو بیٹھے تھے، جیسے کسی نے ان کی روشنی چرا لی ہو۔ آگرہ کے شاہی محل میں دربار خاص کے سنہری ستونوں کے درمیان بادشاہ اکبر اعظم اپنی سلطنت کے نقشے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وقار بھی تھا اور تھکن بھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر اکبر کی حکومت مضبوط بنیادوں پر کھڑی تھی، مگر اس کے دل کے اندر ایک خاموش طوفان چل رہا تھا۔ سلطنت مضبوط تھی، لیکن وارث شہزادہ سلیم اس کے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا۔ اکبر ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے فیصلے لوہے کی دیوار کی طرح اٹل تھے، مگر سلیم ایک نرم دل انسان۔ اکبر کے لیے تخت سب کچھ تھا، لیکن سلیم کے لیے دل کی دھڑکن۔ یہ وہ فرق تھا جو آنے والے دنوں میں سلطنت مغلیہ کے ستونوں کو ہلا دینے والا تھا۔ ایک دن دربار میں رقص کی محفل سجی، طبلہ بجا، ساز چلے اور ایک نئی رقاصہ پیش کی گئی۔ اس کا نام تھا انارکلی۔ اس کے چہرے پر روشنی ایسی تھی جیسے کسی نے صبح کی کرن کو انسانی شکل دے دی ہو۔ جب وہ ناچنے لگی تو دربار میں بیٹھے لوگ جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ ساز تھم گئے، نظریں جم گئیں، اور جب اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دربار میں بیٹھے شہزادہ سلیم کو دیکھا، وہ لمحہ تاریخ بن گیا۔ سلیم کی نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش لمحہ ایسا گزرا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نہ ساز بجا، نہ کوئی بولا، صرف دلوں کی دھڑکن باقی رہی۔ اس دن کے بعد سلیم کا دل محل کے باغوں میں نہیں بلکہ انارکلی کی آنکھوں میں رہنے لگا۔ وہ چاندنی راتوں میں اس کے کمرے کے قریب آتا اور انارکلی پردے کے پیچھے سے چاند کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ دونوں کے درمیان خاموشی میں بولتی ہوئی محبت تھی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس کے اپنے قاعدے تھے، مگر محل کی دیواروں کے کان بھی ہوتے ہیں۔ جلد ہی یہ راز بادشاہ اکبر تک پہنچ گیا۔ اس نے پہلے یقین نہیں کیا۔ اس نے کہا، میرے ولی عہد کو ایک کنیز سے محبت؟ یہ سلطنت ہے، کوئی محبت کا کھیل نہیں۔ لیکن سلیم کے لیے محبت ہی سلطنت تھی۔ جب اکبر نے اسے بلایا تو سلیم نے نگاہیں جھکائے بغیر کہا کہ اگر محبت گناہ ہے تو میں سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ اکبر کے دل میں ایک باپ اور بادشاہ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف خون کا رشتہ، دوسری طرف سلطنت کا وقار۔ اس نے انارکلی کو محل سے نکالنے کا حکم دیا، مگر سلیم نے انکار کر دیا۔ محبت نے اس کے اندر ایسی بغاوت بھڑکا دی کہ اس نے باپ کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ اکبر کے حکم کے برعکس سلیم نے اپنی فوج جمع کی۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر میرا عشق گناہ ہے تو میں بغاوت قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے خود حیرت سے دیکھا۔ بیٹا باپ کے سامنے لشکر لے کر کھڑا ہے، ایک طرف تخت کی طاقت، دوسری طرف دل کی ضد۔ دربار میں طبل جنگ بجا، میدان کارزار تیار ہوا۔ اکبر کے لشکر کے سامنے سلیم کا لشکر، گھوڑوں کی ٹاپیں، تیروں کی بارش، توپوں کی گرج۔ زمین دہل اٹھی۔ سلیم جوانی کے غرور میں تھا، مگر باپ کا تجربہ اور سلطنت کی طاقت ناقابل شکست۔ جب گرد و غبار چھٹا تو سلیم کا لشکر ٹوٹ چکا تھا اور وہ زخمی حالت میں قید ہو چکا تھا۔ جب اکبر کے سامنے سلیم کو پیش کیا گیا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو اور بادشاہ کی آنکھوں میں سختی دونوں تھیں۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں تخت کے وارث کے طور پر دیکھا تھا،
बगावत के मुजरिम के तौर पर नहीं, मगर सलीम के लबों पर सिर्फ एक नाम था, अनारकली। अकबर ने हुक्म दिया कि अनारकली को गिरफ्तार कर लिया जाए। जब वो दरबार में पेश हुई तो उसने न झुककर सलाम किया, न आंखें नीची कीं। अकबर ने कहा, तुझे मालूम है तेरी मोहब्बत ने सल्तनत में आग लगा दी है? अनारकली ने नरमी से कहा, मोहब्बत आग नहीं हुजूर, रोशनी है। अगर आपने उसे जलते देखा तो शायद अंधेरा आपके दिल में है। अकबर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुझे दो रास्ते दिए जाते हैं, या तो सलीम से हमेशा के लिए दूर हो जा या मौत कबूल कर। अनारकली के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। उसने कहा, मोहब्बत को मौत नहीं दी जा सकती हुजूर। आप चाहें तो मुझे दीवार में चनवा दें, मगर सलीम के दिल से मेरा नाम नहीं निकाल सकते। अकबर के चेहरे पर दर्द की एक लकीर उभरी, मगर बादशाह का हुक्म वापस नहीं हो सकता। मजदूरों को बुलाया गया। अनारकली को एक कमरे में ले जाया गया, जहां दीवार के साथ ईंटें हक्की जाने लगीं। वो लम्हा शायद तारीख का सबसे खामोश मगर सबसे चीखने वाला लम्हा था। जब पहली ईंट रखी गई तो अनारकली की आवाज आई, सलीम। दूसरी ईंट, मेरा नाम मत भूलना। तीसरी ईंट, मेरी मोहब्बत कभी नहीं मरेगी। जब आखिरी ईंट रखी गई तो पूरा महल जैसे साकित हो गया। सिर्फ हवा की एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी, जैसे खुद फिजा रो रही हो। शहजादा सलीम जब कैद से रिहा हुआ और उसे खबर मिली कि अनारकली अब इस दुनिया में नहीं, तो वो पागल सा हो गया। वो उस दीवार तक पहुंचा जहां उसकी मोहब्बत दफन थी। जमीन पर गिरा, मट्टी पर हाथ मारे, चीखा, अनारकली दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। मगर दीवार खामोश थी। सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो गई। कहा जाता है सलीम ने उस दीवार के नीचे फूल रखे और कसम खाई कि वो कभी मोहब्बत को फरामोश नहीं करेगा। उसके बाद वो दिन रात खामोश रहने लगा। महल के हर कमरे में अनारकली की याद बसती थी। वो अपने दिल में एक कब्र लिए जिंदा रहने लगा। उस रात जब वो अकेला महल की छत पर खड़ा चांद को देख रहा था, तो उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मोहब्बत को कभी ताज नहीं चाहिए होता, बस एक दिल चाहिए होता है जो धड़कना जानता हो। दिन बदल गए, मगर सलीम की जिंदगी नहीं बदली। महल की राहदारियों में अब भी अनारकली की हंसी की गूंज सुनाई देती थी। कभी वो अपनी आंखों के सामने आती, कभी ख्वाबों में। वो जा चुकी थी, मगर उसकी मौजूदगी हर लम्हा सलीम के साथ थी। अकबर बूढ़ा हो रहा था। वक्त की गर्दिश ने उसके चेहरे पर झुल्लर डाल दी थी, मगर उसके दिल में एक बोझ था, बेटे की मोहब्बत का, जिसे वो कभी कबूल नहीं कर सका। एक रात जब वो तन्हा बैठा आसमान की तरफ देख रहा था, तो उसके होठों पर एक जुमला आया, मैंने इंसाफ किया मगर शायद रहम नहीं किया। कुछ अरसे बाद अकबर इस दुनिया से रुखसत हो गया और सल्तनत का ताज शहजादा सलीम के सर पर रखा गया। अब वो बादशाह जहांगीर बन चुका था। वही सलीम जो कभी इश्क के जुर्म में कैद था, अब हिंदुस्तान का हुक्मरान था। लेकिन ताज सर पर आने के बावजूद दिल खाली था। तख्त पर बैठने वाला बादशाह मजबूत था, मगर उसके अंदर का आशिक कमजोर। जहांगीर के लिए दिन की रोशनी कम और रातों का अंधेरा ज्यादा था। वो रात के वक्त अकेला बाग में निकल जाता। एक दरख्त के नीचे बैठकर वो मिट्टी को हाथों में लेता, जैसे अनारकली के लम्स को तलाश कर रहा हो। अक्सर कहता, मैंने सल्तनत जीती, मगर जिस दिल के लिए ये सब चाहा वो तो दीवारों में सो गया। उसने अनारकली के नाम पर एक खुफिया मकबरा बनवाया। कहा जाता है कि लाहौर में एक पुरानी इमारत है जिसे आज भी लोग अनारकली का मकबरा कहते हैं। वहां जहांगीर अक्सर खामोशी से आकर फूल रखता और किसी को खबर न होती। तारीख कहती है उसने अपने ख्वाबों में अनारकली को कई बार देखा, सफेद लिबास में, मुस्कुराती हुई, चांदनी में रक्स करती हुई। वो कहती, मैं दीवारों में नहीं मरी सलीम, मैं तेरे दिल में जिंदा हूं। जहांगीर की सल्तनत में सब कुछ था, दौलत, ताकत, इज्जत, मगर सुकून नहीं। मोहब्बत की वो चिंगारी जो अनारकली ने जलाई थी अब राख बन चुकी थी, मगर राख के अंदर वही चमक बाकी थी जो किसी वक्त दरबार में पहली नजर में पैदा हुई थी। दिन गुजरते गए। जहांगीर के दरबार में
नए फनकार, नए सिपाही, नई फतूहात आईं, मगर एक चीज नहीं बदली। उसके कमरे की दीवार पर वो तस्वीर जिसमें एक औरत के चेहरे के नकूश आधे मिटे हुए थे। वो तस्वीर किसी ने नहीं देखी, मगर कहा जाता है कि वो अनारकली थी। जहांगीर ने वो तस्वीर खुद बनाई थी, और जब कोई उसके बारे में पूछता तो सिर्फ इतना कहता, ये वो चेहरा है जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया। वक्त गुजरता गया, जहांगीर का बुढ़ापा वो लम्हा वापस लाने का जब पहली बार दरबार में अनारकली ने रक्स किया। कहा जाता है अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वहां चांदनी रात थी। दरख्तों के दरमियान से चांद की रोशनी जमीन पर उतर रही थी। जहांगीर ने जमीन को छुआ, आंखें बंद की और हल्की आवाज में कहा, मोहब्बत को कभी हवा में खुशबू थी और जैसे किसी ने नर्म आवाज में उस रात बादशाह सो गया और सुबह महल में कहानी खत्म हुई, मगर मोहब्बत खत्म नहीं। मुग़ल आज़म सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि मोहब्बत कभी झुक नहीं सकती। चाहे ताज तख्त दांव पर लग जाए, चाहे दीवारें खड़ी हो जाए, मोहब्बत अपनी राह खुद बनाती है, अपने निशान खुद छोड़ती है। सदियों बाद जब 1960 में के आसिफ ने मुग़ल आज़म के नाम से फिल्म बनाई, तो इस कहानी ने फिर से सांस ली। दिलीप कुमार ने सलीम का किरदार निभाया, मधुबाला ने अनारकली को जिंदा कर दिया और पृथ्वीराज कपूर ने अकबर की शान को अमर कर दिया। इस फिल्म में सिर्फ अदाकारी नहीं थी, इसमें वो जज्बात थे जो सदियों से तारीख के औराक में बंद थे। मधुबाला जब दीवार तो पूरा बर्रे सगीर जैसे रोने लगा। फिल्म के हर सीन, हर मुकालमे, हर आंसू में वही कहानी थी जो अकबर, सलीम और अनारकली ने जिंदा की। ये फिल्म इस इश्क की यादगार बन गई जिसने सल्तनत हिला दी थी। और आज जब हम मुग़ल आज़म का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक फिल्म याद नहीं आती, बल्कि एक अहद याद आता है, जहां मोहब्बत ने ताज से ज्यादा वजन रखा, जहां दीवारों में दफन होने वाली औरत सदियों बाद भी अमर है, और जहां एक बादशाह की सख्ती के बावजूद दिल की नर्म धड़कन हमेशा जिंदा रही। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत ताकत नहीं मांगती, बस एहसास मांगती है, और जब दिल सच्चा हो तो वक्त, तकदीर और सल्तनतें भी झुक जाती हैं। सलीम और अनारकली की मोहब्बत एक ख्वाब थी, मगर ऐसा ख्वाब जो कभी खत्म नहीं हुआ। अकबर की बादशाहत खत्म हुई, मुगल सल्तनत मट्टी में मिल गई, मगर अनारकली का अल्फाज आज भी फिजा में गूंजते हैं कि मोहब्बत को मौत नहीं दी जा सकती। मोहब्बत दीवारों के पीछे दफन हो गई, मगर उसकी खुशबू आज भी फिजा में बाकी है। अकबर की सल्तनत मिट गई, जहांगीर का ताज वक्त की धूल में खो गया, मगर अनारकली का नाम आज भी जिंदा है। कहा जाता है इश्क को मौत नहीं आती, वो सिर्फ शक्ल बदलता है, कभी दास्तान बनकर, कभी फिल्म बनकर, कभी दिल की धड़कन बनकर। और जब कोई मुग़ल आज़म का नाम लेता है तो तारीख सर झुका कर कहती है, ये मोहब्बत नहीं थी, ये इबादत थी। क्या कभी तुमने किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जो इंसान ने नहीं बल्कि खुद शैतान ने लिखी हो? एक ऐसी किताब
जिसके हर सफ़े में इल्म भी है और लानत भी, जिसे पढ़ने वाले कहते हैं इसके अल्फाज में अंधेरे की सांसें छुपी हैं। ये वो किताब है जिसने सदियों से दुनिया के अक्लमंदों को हैरान कर रखा है। एक ऐसी दास्तान जिसमें ईमान, गुनाह और शैतान तीनों एक ही सफ़े पर कैद हैं। ये है कोडेक्स गिगास, दुनिया की सबसे पुरस्कार और खौफनाक किताब, जिसे तारीख कहती है द डेविल्स बाइबल। आज हम तुम्हें ले चलेंगे इस किताब के अंदर, जहां रोशनी खत्म होती है और अंधेरा बोलना शुरू करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं तारीख के वो राज जो आज भी जिंदा हैं। रात की स्याही ने बोहीमिया के पहाड़ों को अपनी आगोश में ले रखा था। दूर कहीं खानकाह की घंटी हल्की हल्की बज रही थी। साल था 1229 ईस्वी। यूरोप के एक छोटे से कस्बे पौडिलाजे में एक पुरानी खानकाह थी, जहां चंद राहब खामोश इबादत में मसरूफ रहते थे। उनमें एक राहब ऐसा भी था जिसे सब कहते थे हरमन द रेक्लूज, एक तन्हा, खामोश मगर गैर मामूली जहन रखने वाला राहब। उसके पास इल्म की एक लामहदूद प्यास थी और उसकी आंखों में ऐसा सुकूत होता जैसे वो किसी अनदेखे आलम से बात कर रहा हो। मगर एक रात खानकाह के बुजुर्ग राहब ने हुक्म दिया, हरमन ने खानकाह के कवानीन की मुखालफत की है, उसे जिंदा दीवार में चुन दिया जाएगा ताकि वो अपने गुनाहों का कफ़ारा दे। राहब कांप गया। मौत के सामने उसकी आंखों में खौफ की चमक थी। उसने रहम की इल्तजा की। बुजुर्ग राहब ने कहा, अगर तू एक ऐसा काम कर दे जो खानकाह की तारीख बदल दे तो तेरी जान बख्शी मुमकिन है। हरमन ने झुकते हुए कहा, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो दुनिया ने कभी न देखी हो, ऐसी किताब जो तमाम इल्म, कानून, तारीख और ईमान को एक जगह समेट दे। बुजुर्ग राहब ने तंजिया हंसी के साथ कहा, अगर तू ये किताब एक ही रात में मुकम्मल कर दे तो तेरी जान बख्शी हो जाएगी। ये हुक्म मौत से भी ज्यादा खौफनाक था, लेकिन हरमन ने हामी भर ली। रात गहरी हो गई। कमरे में एक चिराग जल रहा था। हरमन ने कलम उठाया, चमड़े के सफ़े सामने रखे और लिखना शुरू किया। घंटे गुजर गए, हाथ कांपने लगे। नींद, भूख, प्यास सब खत्म हो चुकी थी। जब चांद ढलने लगा, उसने कलम रख दिया और सरगोशी की, मैं ये किताब मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके लबों पर एक और जुमला उभरा, अगर खुदा ने मदद नहीं की तो शायद कोई और कर सके। कमरे में ठंडी हवा चली, चिराग बुझने लगा और दीवार के साये में एक शक्ल उभरी। ऊंचा कद, सर पर सींग, आंखों में सुर्ख रोशनी। शैतान उसके सामने खड़ा था। तुमने मुझे पुकारा है राहब? शैतान की आवाज में जहर भरी मुस्कुराहट थी। क्या तुम मुझसे मदद चाहते हो? राहब की जबान लरज गई। मैं अपनी रूह दे दूंगा अगर तुम मुझे ये किताब मुकम्मल करने में मदद करो। शैतान ने हाथ बढ़ाया। मुआहिदा तय हुआ इंसान, तुम्हें एक रात में ये किताब मिल जाएगी और मैं हमेशा तुम्हारे अल्फाज में कैद रहूंगा। राहब बेहोश हो गया। जब आंख खुली, उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी किताब रखी थी, कोडेक्स गिगास। सुबह जब दूसरे राहब कमरे में आए तो लरज गए। एक मेज पर रखी किताब इतनी बड़ी थी कि 2 आदमी भी ना उठा सकें। उसके सफ़हे चमड़े के थे और स्याही जैसे आग में जलकर लिखी गई हो। शुरू में पूरी बाइबल दर्ज थी, फिर तारीख, जादू के तरीके, बीमारियों के इलाज और आखिर में एक पूरा सफ़हा जिस पर सिर्फ शैतान की तस्वीर बनी थी। शैतान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी,
जैसे वो जानता हो अब वो कभी नहीं जाएगा। राहब हरमन खामोश बैठा रहा। उसके होंठ नीले थे। उसने बस कहा, मैंने वादा पूरा किया, अब दुआ करो कि वो वापस ना आए। राहबों ने उसे मुकद्दस मानकर छुपाए रखा, लेकिन वक्त गुजरता गया। जहां ये किताब गई वहां बदकिस्मती साथ गई। 1322 में खानकाह में आग लगी, सब कुछ जल गया, मगर कोडेक्स गीगास महफूज रही। लोगों ने कहा, यह मोजिजा नहीं, यह शैतान का खेल है। फिर यह किताब प्राग ले जाई गई, जहां बादशाह रुडॉल्फ दुआम ने इसे अपनी लाइब्रेरी में रखा। वो जादू और रूहानियत में दिलचस्पी रखता था। कहा जाता है वो अक्सर रातों में इस किताब को पढ़ता और किसी अनदेखी हस्ती से बातें करता। इसी के दौर में कहत आया, बीमारियां फैलीं, जंगें हुईं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये किताब मनहूस है, जहां ये जाती है तबाही आती है। कोडेक्स गीगास का सबसे पुरस्कार सफ़हा वो है जिस पर शैतान की तस्वीर बनी है। दुनिया की कोई और बाइबल ऐसी तस्वीर नहीं रखती। शैतान एक तख्त पर बैठा है, सब चेहरा, दो जबानें, तेज पंजे और आस-पास खालीपन का अंधेरा। कुछ माहिरीन कहते हैं ये इंसान के गुनाहों की अलामत है, कुछ कहते हैं ये उस मुआहिदे की दस्तखत है जो हरमन ने उस रात किया था। कहा जाता है जब कोई देर तक इस सफ़हे को देखता है तो शैतान की आंखें हरकत करती हैं और रात को किताब से सरगोशियां सुनाई देती हैं। 19वीं सदी में जब माहिरीन ने कोडेक्स गीगास का तज्जिया किया तो हैरान रह गए। पूरी किताब एक ही हाथ की लिखाई में थी, यानी वाकई एक ही शख्स ने लिखी। अगर कोई इंसान दिन रात लिखे तो उसे 30 साल लगेंगे, लेकिन ये किताब एक ही रात में मुकम्मल लगती है। किताब की जिल्द ऊंट या गाय के चमड़े की थी और इतने सफ़हात के लिए 160 जानवरों की खालें दरकार थीं। क्या एक राहब के लिए मुमकिन था? यह आज भी एक राज है। 1631 में स्वीडन की फौज ने प्राग पर कब्जा किया और कोडेक्स गीगास को बतौर माले गनीमत अपने साथ ले गए। आज ये स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में महफूज है। किताब का वजन 75 किलोग्राम है। 310 सफ़हे हैं, मगर कुछ सफ़हे गायब हैं। कहा जाता है वो सफ़हे उन दुआओं के थे जिनसे शैतान को बुलाया जा सकता था। रात के वक्त लाइब्रेरी के अमले ने बताया, किताब के कमरे से हल्की कराहें आती हैं और कभी-कभी इसके सफ़हे खुद ब खुद हिलते हैं। कई सदियों बाद भी लोग कहते हैं, कोडेक्स गीगास सिर्फ एक किताब नहीं, ये शैतान का कैद खाना है। राहब हरमन की रूह आज भी इसके अंदर बंद है और शैतान इस किताब के जरिए दुनिया से बात करता है। जब भी इसे नुमाइश में रखा गया, कुछ न कुछ खौफनाक हुआ। कभी लाइट बुझी, कभी कोई जायर बेहोश हुआ। किसी ने कहा, मैंने किताब के अंदर से आवाज सुनी, मैंने तुम्हें कहा था ये मेरी है। आज भी माहिरीन इसके सफ़हात स्कैन कर रहे हैं, डिजिटल कॉपियां बना रहे हैं, मगर कोई नहीं समझ पाया कि एक इंसान ने यह सब कैसे लिखा। कुछ मुअर्रिख कहते हैं ये किताब इल्म की अलामत है, जहां नेकी और बदी इकट्ठी हैं, और कुछ कहते हैं ये इंसान के गुरूर का सबूत है, जिसने इल्म के नशे में अपनी रूह बेच दी। वक्त गुजर गया, खानकाहें मिट गईं, राहब राख बन गया, मगर कोडेक्स गीगास आज भी जिंदा है। स्वीडन की लाइब्रेरी में एक शीशे के संदूक में बंद, जहां रोज लोग आते हैं, मगर बहुत कम इसके करीब रुकते हैं। कहते हैं अगर तुम इसके सफ़हे पर बने शैतान की आंखों में ज्यादा देर तक देखो तो वो पलक झपकता है और तुम्हारे अंदर की आवाज बदलने लगती है। राहब हरमन ने वादा किया था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखेगा, और उसने लिख दी, लेकिन कीमत उसकी रूह थी। शायद इसीलिए जब कोई कोडेक्स गीगास को पढ़ने की कोशिश करता है तो कमरे में एक हल्की सरगोशी गूंजती है, मैंने तुम्हें कहा था ये मेरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से
جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی تاریخی کہانی جو صرف تاریخ نہیں، ایک عہد کی دھڑکن ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کی فتوحات نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور جسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، سکندر اعظم۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 356 برس قبل مسیح میں، قدیم یونان کے شمالی علاقے مقدونیہ کے دارالحکومت پیلا میں، جہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ بچہ تھا سکندر بن فلپ۔ اس کے والد بادشاہ فلپ مقدونیہ کے طاقتور حکمران تھے، جبکہ اس کی ماں ملکہ اولمپیس ایک مذہبی مضبوط اور پر اصرار عورت تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر کہتی تھیں، میرا بیٹا عام انسان نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے پیدا ہوا ہے۔ اور شاید یہی یقین سکندر کے خون میں بہادری بن کر شامل ہو گیا۔ بچپن سے ہی سکندر میں غیر معمولی ذہانت، خود اعتمادی اور ضد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف 12 سال کا تھا تو اس نے ایک وحشی گھوڑے بیوسیفالس کو قابو کر لیا۔ وہ گھوڑا جس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، مگر سکندر نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور چند لمحوں بعد وہی وحشی گھوڑا اس کا وفادار ساتھی بن گیا۔ یہ گھوڑا بعد میں سکندر کے ساتھ دنیا کے کناروں تک گیا اور اس کے ساتھ اس نے تاریخ بدل دی۔ سکندر کے والد نے محسوس کیا کہ اس کا بیٹا عام نہیں، لہٰذا اس کے لیے بلایا گیا ایک خاص استاد، فلسفے کا بادشاہ ارسطو۔ ارسطو نے سکندر کو صرف علم نہیں دیا بلکہ سوچنے کا طریقہ سکھایا۔ اس نے کہا، ایک بادشاہ صرف تلوار سے نہیں، عقل سے حکومت کرتا ہے۔ یہ الفاظ سکندر کے دل میں اتر گئے۔ اسی تعلیم میں اس کے اندر ایک نڈر، باشعور اور منصف حکمران پیدا ہوا۔ سکندر کہا کرتا تھا، میرے والد نے مجھے زندگی دی مگر میرے استاد ارسطو نے مجھے جینے کا مقصد دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب قسمت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سکندر صرف 20 سال کا تھا جب اس کے والد بادشاہ فلپ کو ایک تقریب میں قتل کر دیا گیا۔ دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف شور، سازش، خوف، مگر سکندر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ آگے بڑھا، تخت پر قبضہ کیا اور اعلان کیا، میں مقدونیہ کا بادشاہ ہوں۔ اس کے دشمنوں نے سوچا کہ یہ جوان لڑکا زیادہ دیر نہیں ٹکے گا، لیکن وہ غلط تھے۔ سکندر نے بجلی کی رفتار سے حملہ کیا۔ بغاوت کرنے والے سب قبیلے، یونان کے بڑے شہر ایتھنز، تھیبز، اسپارٹا، سب اس کے قدموں میں جھک گئے۔ اب وہ صرف مقدونیہ کا نہیں، پورے یونان کا فاتح بن چکا تھا۔ مگر سکندر کا خواب یونان تک محدود نہیں تھا۔ اس کی نظریں مشرق کی طرف تھیں، جہاں ایک اور عظیم سلطنت تھی، فارس، اور وہاں حکمرانی کرتا تھا بادشاہ داراسوم، جسے اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور حکمران سمجھا جاتا تھا۔ سکندر نے اپنے جرنیلوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، دنیا میں صرف ایک سورج ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ اور یوں 334 قبل مسیح میں سکندر نے اپنی فوج کے ساتھ فارس کی طرف مارچ کیا۔ اس کے پاس 35,000 سپاہی تھے، دارا کے پاس لاکھوں۔ لیکن جنگ صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتی بلکہ عقل، جذبے اور حوصلے سے۔ پہلی جنگ دریائے گرانکس کے کنارے لڑی گئی، دھول اڑی، نیزے ٹکرائے، تلواروں کی چمک سے زمین دہل اٹھی۔ سکندر کی حکمت عملی نے بڑے لشکر کو چیر کر رکھ دیا۔ پھر اسس کے مقام پر دوسری جنگ ہوئی۔ دارا خود میدان میں آیا مگر انجام وہی ہوا، شکست۔ دارا خود میدان سے بھاگ نکلا۔ سکندر نے اس کے خاندان کو گرفتار کر لیا،
मगर उनके साथ इज्जत और नरमी से पेश आया। दुनिया हैरान रह गई। ये था वो लम्हा जब दुश्मन भी सिकंदर के किरदार के कायल हो गए। इसके बाद सिकंदर ने मिस्र का रुख किया। लोगों ने उसे फिरौन का दर्जा दिया और वहां उसने एक नया शहर बसाया, इस्कंदरिया, जो आज भी इल्म, फन और तारीख की अलामत है। फिर वो लम्हा आया जब दारा सोम ने आखिरी कोशिश की। 331 कबले मसीह गोगा मेला के मैदान में आखिरी जंग हुई। जमीन लरज उठी, आसमान गूंज उठा, नेज़े चमके, तलवारें टकराईं और दारा की अजीम सल्तनत सिकंदर के कदमों में आ गिरी। दारा भागते हुए मारा गया। जब सिकंदर उसकी लाश तक पहुंचा तो खामोश खड़ा हो गया। उसने अफसोस से कहा, मैं इसे जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि एक बादशाह दूसरे बादशाह को इंसाफ दे सके। अब सिकंदर दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन चुका था। यूनान, मिस्र, फारस सब उसके जेर कदम थे, मगर उसके ख्वाब अभी खत्म नहीं हुए थे। उसकी नजरें अब एक नई सरजमीन पर थीं, हिंदुस्तान। सिकंदर ने अपने जर्नेलों से कहा, अब वक्त है दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंचने का। चुनाचे वो अपनी फौज के साथ बर्रे सगीर की तरफ बढ़ा, दरियाए सिंध पार किया और पहुंचा जेहलम के किनारे, जहां उसका सामना हुआ राजा पोरस से। राजा पोरस एक बहादुर, खुददार और अजीम बादशाह था। उसने सिकंदर को पैगाम भेजा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, मगर याद रखो, पंजाब की जमीन पर हमला आवर कभी सलामत नहीं गया। दोनों लश्कर दरियाए जेहलम यानी हाइडास्पिस के किनारे आमने सामने आ गए। रात भर बारिश बरसती रही, बिजली गरजती रही और सुबह जब सूरज निकला तो दुनिया ने एक ऐसी जंग देखी जो तारीख की सबसे बहादुर जंगों में शुमार होती है। राजा पोरस ने हाथियों की फौज तैयार की, जबकि सिकंदर ने घुड़सवारों की। दरिया के पार से हमला हुआ। पानी में तैरते घोड़े, चीखते सिपाही और तलवारों की गूंज फजा में खौफ फैला रही थी। सिकंदर जख्मी हुआ। ब्यूसीफालस उसके साथ खून में लथपथ लड़ता रहा, मगर आखिरकार सिकंदर ने अपनी चाल बदली और राजा पोरस को कैद कर लिया। जब वो उसे सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूं? राजा पोरस ने शान से कहा, जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। ये अल्फाज सिकंदर के दिल में उतर गए। उसने फौरन कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही जवाब देता। और यूं उसने राजा पोरस को रिहा कर दिया, बल्कि उसे दोबारा बादशाहत वापस कर दी। ये वो लम्हा था जब दुश्मन भी सिकंदर के अदल के कायल हो गए। मगर किस्मत के फैसले कुछ और थे। वापसी के सफर में सिकंदर बीमार पड़ गया। कहा जाता है कि बाबुल पहुंचकर उसकी हालत बिगड़ गई। चंद दिन बाद वही जवान, वही फातेह, वही सिकंदर आजम जिसने दुनिया को फतह किया था, सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। कहा जाता है कि जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने कहा, मेरे हाथों को मेरे ताबूत से बाहर रखना, ताकि दुनिया देख ले कि सिकंदर भी खाली हाथ गया। और यूं खत्म हुई एक ऐसी दास्तान जिसने सदियों तक बादशाहों, सिपाहियों और इंसानों को ये सबक दिया कि फतूहात हमेशा तलवार से नहीं होती, बल्कि किरदार, अकल और इंसाफ से होती हैं। ये थी सिकंदर आजम की कहानी। अगर आपको ये तारीखी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी हैरानकुन कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।